ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ جمعے والے دن ایک سیکنڈ جمعے والے دن میرے ہمارے جو کزن ہیں ان کا فون آیا کہ شفا ہاسپٹل میں شاید وہ تیاری کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈینٹسٹ کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے لا رہے ہیں، تو شفا انٹرنیشنل میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فیملی ممبر موجود ہو، اور شفا انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چھپا نہیں سکتے، ہم یہ رپورٹ فیملی کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہم ان کو دے دیں گے. تو پھر اس کے بعد نہیں پتہ چلا، شفا انٹرنیشنل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. پھر میں نے کہا یہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، کئی دفعہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کیا کر رہے ہیں. تو آج ان کو پتہ اطلاع ملی میں ہمارے کزن کو کہ ہفتے کی رات کو پتہ نہیں 2-3 بجے رات کو یہ عمران خان کو لے کے گئے. ڈینٹسٹ بیچارے کو صبح 4 بجے اٹھا کر عمران خان کے دانت کی ٹریٹمنٹ کرائی ہے. ہم نے یہ ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی کی تھی کہ دیکھیں اگر وہ ہسپتال لے کر آ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل، اگر یہ سچ ہے تو عمران خان کی آنکھ کا ضرور چیک اپ کروا دیں، اس کا ڈائگنوسس اگر اس کا اسپیشلسٹ آ جائے. تو یہی ایک ہماری ڈیمانڈ تھی، اور میرے کزن کی بھی یہی تھا کنسرن کہ ہم ان کی آنکھ کے لیے چیک اپ، ان کا مطلب ایگزامینیشن اور چیک اپ ہو جائے. تو آج ہم نے ان سے پوچھا کہ پکا پتہ ہے، کہ انہوں نے کہا ہاں ہاسپٹل سے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ ان کو صبح کے 4 بجے ڈینٹسٹ بیچارے کو ISI کہتے ہیں ساری اندر گھس چکی تھی ہسپتال کے، وہ مانیٹر کر رہے تھے، مینیج کر رہے تھے، اور ڈینٹسٹ کو صبح 4 بجے اٹھا کے لے کے گئے. میں کہا ڈینٹسٹ صاحب بھی بیچارے شریف آدمی، کوئی ڈینٹسٹ ہوں گا جو ڈر رہے ہوں گے کہ جب ایجنسی والے آ جائیں. ان کو یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. کہ ہم نے پھر سے پوچھا کوئی آنکھ کی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ موسٹ پرابلی جو ڈاکٹر ہے اس کو اجازت بریفنگ دی ہوگی ایجنسی والوں نے کہ آپ کوئی سوال عمران خان سے کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کس طرح یہ کرتے ہیں. اور کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ 4 بجے صبح ہفتے والے دن عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے گئے. اچھی چیز یہ جو اس میں سے ہمیں لگتی ہے کہ ہمارے 2 مہینے لگاتار ڈیمانڈ کرنے کے سے کہ شفا انٹرنیشنل ہی ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کے لیے شفا انٹرنیشنل لے گئے تھے عمران خان کو. اب ہمارا واپس ہم آتے ہیں کہ اگر عمران خان کو ڈینٹسٹ کے لیے شفا انٹرنیشنل لے کے جا سکتے ہیں، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا معائنہ شفا انٹرنیشنل میں کیا جائے، اسپیشلسٹ کے ساتھ ایگزامینیشن کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلاٹ بنا کیوں تھا. اس کے لیے میری بہن آپ کو بتائیں گی، جب یہ بتاتی ہیں بلکہ ہمارے سے ناراض ہوتی ہیں کہ تم لوگ ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہو، کہ ہمیں ان کی بلڈ پروفائل کہتے ہو، بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں، مکمل ان کا ایگزامینیشن بلڈ پروفائل کا ہونا ہے. آنکھ والے ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ کلاٹ کیوں ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ہاں نہیں بتا سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو جنرل فزیکل ایگزامینیشن چاہیے، فیسلٹیز چاہیے، اور یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. ان کو پراپر طریقے سے ایک ہاسپٹل میں چاہیے، اور جو ڈاکٹرز دیکھنے والے بھی اس خاص بیماری کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا. ایک آنکھوں کے بھی آئی اسپیشلسٹ بھی، ایک جنرل آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے کسی فیلڈ میں. تو ان کی یہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو کلاٹ کیا ہے نا، یہ ایک سمٹم ہے، یہ ایک کسی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ پتہ کرنا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کلاٹ آیا. اور کیونکہ اگر ہم نے کرٹیکل اس لیے ہے کہ اگر ہمیں وجہ نہیں پتہ چلی تو ہم فکر ہے کہ دوسری آنکھ پہ افیکٹ ہوئے گی. تو اگر کاز تو وہی موجود ہے تو، اور خان صاحب نے اس دفعہ یہ پیغام سلمان صفدر کا بھیجا ہے کہ میرے انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں، جو پچھلی دفعہ بھی سلمان صفدر کو اب بھی کہا ہے کہ مجھے میرا علاج کراؤ. تو اب ہمارا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ امیڈیٹلی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کی مکمل ایگزامینیشن، جنرل ایگزامینیشن، ڈیٹیلڈ ہر چیز کی ٹیسٹ ہو ان کے، اور وہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس ہماری پریزنس میں ہو. ہم کسی کو دیکھیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ابھی تو چھپ چھپ کے رات کے 4 بجے لے کے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو ہم ان کو یہ کیونکہ
हर चीज का झूठ बोलते हैं, इसलिए हम इनका बिल्कुल एतबार नहीं है। हमारा डॉक्टर हमारी फैमिली की प्रेजेंस में होगा, ये उनका हक है। और मैडम, देखिए सलमान 70 देखिए, की तो एक सेकंड मुझे बात खत्म करने दें। दूसरा समझें कि जब ऐसा है कि बंदे आपके घर सुबह के किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, कितना प्रेशर डाल रहे हैं, कितनी ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ भी, तो हमारी प्रेजेंस का मतलब ये कि हमारे से ही हौसला आएगा ना। अगर हम मौजूद होंगे तो हम डिमांड कर सकते हैं कि ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट एक और बात, ये जो डेंटिस्ट के लेके गए, इनका पहली बात है हमें इन्फॉर्म किए बगैर डेंटिस्ट के क्यों लेके गए। और डेंटिस्ट की जब मैं सोचती हूँ कि क्या वजह है कि जिस वजह से इमरजेंसी रात के 4 बजे आपको लेके 3 जाना बजे पड़े, क्यों लेके गए हैं? क्या इनके एब्सेस हो गई थी? क्या वजह क्या है? क्योंकि आपको ना डेंटल कंडीशन भी, और 1 साल पहले पिछली मार्च में मुझे याद है उन्होंने कहा था मैं डेंटिस्ट बुलाऊं, हमने उनका एप्लीकेशन डाला था, साल से कह रहे हैं मैं अब या तो कोई एब्सेस क्रिएट हो गया, कोई उससे ये डेंजर होता है कि वो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन आगे भी हमें क्या पता क्या झूठ बोलता है। हमें तो कुछ नहीं बताया ना, हमें कुछ न कुछ बता रहे। क्या इमरजेंसी है कि उनको हॉस्पिटल, वैसे तो आप कहीं नहीं लेके जा सकते, आप इंटरनेशनल नहीं, शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके जा रहे थे, तो डेंटिस्ट इवन वहाँ क्या वजह है कि क्यों लेके गए हैं? क्या कोई सीरियस चीज है? क्या वजह है? अब हम मजीद परेशान हो गए। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जब लेके गए थे, जब एक दफा आप लेके गए हो हॉस्पिटल, तो आंख का क्यों नहीं मुआयना करवाया इन्होंने? शिफा इंटरनेशनल में क्या चीज छुपा रहे हैं कि आंख का मुआयना इन्होंने शिफा इंटरनेशनल में नहीं करवाया, जो हमारा 2 महीने से ज्यादा हो गया। मैं एक ही चीज डिमांड कर अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, सलमान सफदर की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने क्या पैगाम भिजवाया वो बताइए जरा। और उसमें कंफर्म नहीं हो गया था मैडम जो खदशात थे पीटीआई को इमरान खान जो साहब मैं की ये सेहत से बात मुताल्लिक? एक का सवाल पूछ लेना, एक दूर भी हो सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये देखें, जो इमरान खान ने जो उनको कहा था, एक तो उन्होंने बड़े अपसेट थे अपने लॉयर्स के साथ, जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, नाराज कहते मैं नाराज। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उनको जितनी एफर्ट करनी चाहिए थी, इमरान, ये जजेस जो प्रेशर डाल रहे हैं जजेस के ऊपर, आपको पता है ये जो बार एसोसिएशन वगैरह 26वीं तरमीम के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, 27वीं तरमीम के लिए नहीं खड़ा हुआ, उसके नतायज आज इमरान खान ही भुगत रहे हैं। और उसके लिए ये बार और ये जो सारी ILF है, ये भी न खड़ी है, और जो पीटीआई के सारी लीडरशिप है वो भी लॉयर्स हैं। तो वो इतना तो कर सकते हैं कि वहां पे जाकर बैठ के प्रेशर डालें उस जज के ऊपर। एतजाज एहसन साहब आए थे उस दिन, तो हमारा केस लगा, तो इसलिए अब इंशाल्लाह अब हम एतजाज एहसन साहब पे इमरान खान सुन के बहुत खुश हुए, ये भी मैं बता दूं, कहते उनका सुन के बहुत खुश हुए कि मैं बड़ा खुश हूं कि एतजाज एहसन साहब आए और वो वहाँ पे अदालत में आए। और इसके अलावा पार्टी के बारे में कोई पैगाम भिजवाया उन्होंने कोई? वो हमारा काम नहीं बनता। खदशात दूर भी हो जाने चाहिए। सलमान सफदर ने जो हमें आंख का, हमारा एक इशू है, लेकिन मेरी बात सुनो, हमारे एज ए फैमिली हमें सिर्फ उनकी हेल्थ का ही हमारा इशू है, और वो ये कि उनकी आंख उन्होंने बताया कि बिल्कुल वही मसला है। पहला इंजेक्शन जो लगा था उसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, और कहते हैं वो जो डॉक्टर आरिफ है उसने खान साहब को खुद कहा है कि आपकी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है आंख, और वो जो 85% जो पहले टीके के बाद जो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी, इमरान खान ने कहा उसके बाद मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और मुझे सलमान सफदर तुम नजर नहीं आ। ये दोबारा रिपीट, ये उनकी, और हमारा इंटरेस्ट वहां तक था। हमारा सिर्फ इंटरेस्ट है कि उनको किसी तरह हॉस्पिटल प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ये ना हो कि उनकी दूसरी आपको आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, इसके खदशात हैं। ये आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इंकशाफ किया था कि हमें लगता है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तबसरे भी हुए थे। इस पे आप क्या कहती हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिली गई है, ना उनको पता लगा है कि उनको क्या बीमारी है। देखिए, इन लोगों का कुछ एतबार है, इन लोगों का एतबार है कि इमरान खान को ये जेल में वजह मैं बताती हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ, मैं बताऊँ। खान साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में बड़ा क्लियरली कहा था, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है और मुझे मार देगा, और मैंने उनको कहा था कि नहीं मार सकता, उसकी जरूरत नहीं होगी। अब मैंने कहा मैं सोचती हूँ आखिरी मेरी, उन्हें बड़े क्लियर थे, कहते जो मेरे साथ ये कर रहे हैं ये मुझे मार देंगे, और मगर फिर भी मैं खड़ा हूँ, मैं मजबूत खड़ा हूँ। मगर अब मैं सोचती, तब मैंने एग्री नहीं किया था उनके साथ, मैं उसकी जरूरत, मगर
ये जो सब कुछ हो रहा है बाहर आके भी नहीं बताया? नहीं बताया, मैंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगी, मगर जब ये इनकी आंखों का हुआ इनको बताया था मैंने, मगर जब ये आंखों का मुझे अब यही फिक्र है कि देखिए अगर आप ट्रीटमेंट सपोजिंग आपने डायग्नोज किया, पहली बात है कि डॉक्टर ने जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर के काम है कि फैमिली को इन्फॉर्म करे, स्पेशली जेल में है जो आपकी हिरासत में है, तो आप उनसे कंसेंट भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके कंट्रोल में है एक, तो उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, वो हमें क्यों नहीं बता रहे? अगर सपोजिंग डायग्नोसिस कर लिया, जो लिखा हुआ नहीं हमने देखा, जो रिपोर्ट आई थी उसमें डायग्नोसिस नहीं था, अगर सपोजिंग है भी तो फिर छुपाने क्या बात है? हमें टेस्ट दिखाएं हमें, तो इसलिए हमें मजीद शक हो रहा है सियासी कि इख्तलाफ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, आसिम मुनीर ने क्या किया है? एक सेकंड बेटा, मेरी बात सुनो। अभी आज सारे इमरान खान ने कहा है, जब इमरान खान ने कहा आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है, तो वो मारना चाहता है, जब वो कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं। मैम लास्ट ही बता दीजिएगा, यू हैव 10 लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, पीटीआई दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी जमात है जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मिले, सेनेटर्स उनके हैं, एमपीएज उनके हैं, इतनी सीवियर कंडीशन आप बता रही हैं, इस पे इन 4 महीनों में वो कुछ नहीं कर पाए, उनकी नेग्लिजेंसी के बारे में आप क्या कहती हैं? जो कुछ करना चाहिए आपको लगता है कि कोई ऐसे अमल हो सकते हैं या आप एडवाइस करना चाहते हैं? बीना फैमिली हम मशवरा देते हैं पार्टी को कि देखें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर सारे एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स अगर यहाँ आके बैठ जाएं, हमारे साथ भी बैठना, जुमेरात को बैठ जाएं और प्रेशर डालेंगे, कैसे हो सकता है कि सारी आपकी ऑपोजिशन यहाँ बैठी हुई हो कि इमरान खान का इलाज कराओ और फिर ये इनकार करना है? हो नहीं सकता ना, अगर सारे आके बैठ, असेंबली में भी बोल रहे हैं, बाहर भी और यहाँ आके तो इमरान खान के आए, लीडर उनका इधर है ना आने की वजह क्या लगती है, क्यों नहीं पहुंच रही? की क़यादत जो है वो क्यों नहीं मतलब आ रही, और हमने देखा सलमान अकरम ये राजा, कौन है? तैयार जी मतलब सलमान अकरम राजा या पीटीआई की क़यादत उल्टा मतलब है आपके खिलाफ ही बयानबाजी कर रही है। कोई बात नहीं, देखो ये अंडर प्रेशर होंगे, हम फिर भी कहेंगे वो हुआ यही था, कोई बात नहीं, अगर कह दें हम नहीं माइंड करते, हमें आदत हो गई है। असल में बात ये है कि जब ये जलसा कैंसिल कर रहे थे, तो जब कैंसिल करने के वक्त जब वो ऑब्वियसली मिन्नतें ही कर रहे होंगे ना इनकी कि देखो हमारा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, प्लीज ये ना करो, तो जब आपको कोई कहता है प्लीज ना करो, तो आप नहीं कहते कि फौरन हम इनसे कोई चीज ले लें, और वो इमरान खान का इलाज था, भाई इतनी सी मांगना था। हम ये भी नहीं कह सकते अगर आप प्रेशर डालेंगे तो फिर इमरान खान का इलाज होगा ना, यही हम डिमांड, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी हम कहेंगे पीटीआई को मैडम कि सलमान हम आप चाहते हैं कि आप इस गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, चाहे एहतजाज में डालें, चाहे जो मर्जी करें, आप प्रेशर डालें कि इमरान खान का इलाज बेहतर तरीके से अस्पताल में हो। हम क्या, आप सारों को पता है कि आपके भी किसी की करीबी इतना सीरियस सिचुएशन हो जाए कि आंख ना जाया हो जाए या दूसरी आंख ना खराब हो जाए, तो आप भी हर हद तक कोशिश करेंगे, तो हम भी वही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैडम सलमान सफदर की जो मुलाकात हुई थी इमरान खान से